Hey guys, welcome to the channel. Yeah, Nice. so we have got Ankur with us. Today I've got a 10-year-old also along with us. The whole point of bringing him along was, he has a first-hand experience of the way COVID hit him and his family. And this video is going to be on a very serious topic wherein we have heard a recent statement from the central government talking about that there have been no deaths due to the shortage of oxygen. Unfortunately, it's a very, very irresponsible statement. Here we have Prachetas talking his first-hand experience. So, hey Prachetas, can you give us Hello, Prachetas. some more information which you were talking to us about? Yes. When I was going to the hospital, so there was lot of patients required, Sure. and many people were in wheelchair. They were coughing. I was pretty scared. But when I see my papa, he suffered a lot. He needed oxygen. My mummy had a struggle too so much. She went out of station to get cylinders. Cylinder. Okay. No beds were there in the hospital. It was scary. Then black fungus happened. We could not get injections. Papa had to get operated 3 times. I prayed every day to God, and family members were scared. It was terrible time. But there was somewhere hope that I can see. Prachetas, I think you're a very brave boy. I'm really happy to see you. So Prachetas, you are mine and Tarun's kids are almost the same age as you are. And we are very, very happy to see you back. And we wish your dad a very healthy and successful life, right? I understand your emotion. Don't get bogged down. You've come out as a winner and you will be a winner all through your life, okay? Yeah, thank you, Prachetas. We appreciate your feedback and your overall, the whole scenario which you described, which sounds very, very scary. So, guys, this is coming in from a 10-year-old giving a first-hand experience of what he saw and experience as to, so what he went through. So, yeah, Prachetas, probably you can disconnect and we can continue with the recording. Okay. Yeah? Thank you, Prachetas. Thank you so much. हाँ जी भाई, तो जैसे कि अभी प्रचेतस ने हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया ऑफ दिस सिचुएशन, तो बॉस मेरा ना मतलब मैं कल से जब से हमने ये सोचा कि हमें ये इसके बारे में एक सीरियस टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए, आई बीन सो मूव्ड बाय दिस इररेस्पॉन्सिबल एंड दिस, यार क्या बोले यार, 10 साल का बच्चा मतलब ये बात समझ रहा है कि देयर वाज लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड हिज मदर वाज अंडरगोइंग दैट होल हेल्टर स्केल्टर ऑफ अरेंजिंग सिलेंडर्स. दे वर लकी. मैं तो कहूंगा पता नहीं किस भगवान की क्या दया रही होगी कि. So I'm really angry this time, okay? Even though same. I have exactly the same expression as you. Crap. This is absolute bull crap. 29 states in India and 7 union territories. The central government fucking rules 16 states and all the 7 union territories. भाई वो क्या बोल रहा है, वो बहनचोद क्या बोल रहे हैं. सॉरी, अब हमें इस वीडियो में we will go abusive. This is like seriously getting crazy. वो बहनचोद क्या बोल रहे हैं कि हमारी स्टेट्स में जिनमें मतलब बीजेपी रूल कर रही है, किसी की डेथ नहीं हुई है लैक ऑफ ऑक्सीजन से. तुम बहनचोद वहां रहते हो, कहीं मार्स पे रहते हो जहां बहनचोद तुम्हारा कोई अलग रूल चलता है. कितनी बेवकूफाना irresponsible बात है ये, right? And you're telling us that these are the numbers that the government has. This is the most freaking unrealistic thing that you can tell to your people around. Absolutely crap. Absolutely crap. नहीं, ये वो वाली बात है कि तुम्हारे घर में आके बहनचो पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान आके तुम्हारे को ठोक बजा के चले जाए, ठीक है? तुम कहो जी नहीं जी हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे तो सोल्जर्स ने ना रिटर्न फायर अच्छा दिया था, तो पता नहीं जी मरे नहीं मरे, वो तो जब आए थे तो हमने उनको हैंडल कर लिया था. क्या कर लिया था? अरे इतने तो बहनचोद औकात रखो, इतने तो गट्सी बनो कि बहनचोद जो रियलिटी है, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना सीखो. एक्नॉलेज करो यार, एक्नॉलेज करो. अरे हो गया.
हो गया। ये पता है चक्कर क्या हो गया है, ये ना मैं कल भी तेरे से ये बात कर रहा था ना, इन्होंने हर चीज को ना एक ऐसा पॉलिटिकल एंगल और वो ट्विस्ट, एक तो आधे से ज्यादा इनकी जो अंधभक्त वाली सेना है, मैं इतना परेशान हूं उन लोगों से। एक इन्होंने, मैं तेरे साथ मजाक कर रहा था ना कल, कि इन्होंने हिंदुत्व को, जो कि मेजॉरिटी है कंट्री में, उसको माइनॉरिटी प्रूफ करके या दिखा के उनको वो फियर डाल के ऐसी पॉलिटिक्स क्रिएट कर रखी है कि इनके ये सारे के सारे ये जो पाप है, ये लिटरली ये भी धुल जा रहे हैं इनके बीच में। And I will like to also point out another thing. There is a video, and Tarun will put down that video's link as well. There is a gentleman in the parliament by the name of Mr. Manoj Jha. He's a sitting MP, okay, right now. He actually took the center stage and told point blank that let us accept this as a failure of the system. Please accept that. I have not heard any fucking apology from any MP, any sitting minister, anybody at all. And this is the truth. This is the truth. I went through COVID. My parents went through COVID. My friends went through COVID. I used to call up 20-30 different people every day. Absolutely. My friend, ऐसा कोई भी नॉन एसोसिएट नहीं है, मेरा भी फॉर दैट मैटर। मैं कहूंगा पूरा 130-140 करोड़ की हमारी आबादी है, जिसमें कोई भी किसी का कोई ऐसा रेफरेंस का बंदा नहीं होगा जिसको नहीं इम्पैक्ट हुआ है कोविड से। ये तो कतई झूठ है यार। ये कैसे तुम मतलब कि इनको रात को नींद कैसे आती है यार? I'll tell you what, and you'll be surprised, Tarun. हम बात कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट की, and I'll not name the state and the city or whatever, right? There are states and cities near the capital of India that are thinking of opening up theaters of cinema halls. Are you guys crazy? दिमाग खराब है क्या? जितना मैंने लास्ट नंबर पढ़ा था, एंड आई एग्री विद यू, जितना मैंने लास्ट नंबर पढ़ा था, आई थिंक मोदी का खुद का स्टेटमेंट है, ओनली 6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज राइट नाउ वैक्सीनेटेड। हाँ, around between 6 to 7% fully vaccinated. Around 25% are ones who have just got one dose. Okay, so this drama of dose, this drama कोविशील्ड नहीं है, कोवैक्सीन नहीं है, ये अभी नहीं होगा, ये अभी नहीं होगा। अब जब दोबारा थर्ड वेव आएगी ना, तब होगा ये ड्रामा, दोबारा होगा ये ड्रामा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया इज नॉट डूइंग अ बैड जॉब, इट इज डूइंग अ गुड जॉब, इट इज, बट हम जिस मैसिव स्केल पे, हाँ हम जिस स्केल पे है ना, हमें हर चीज का, हमारे को सेकंड वेव आने में भी टाइम लगा कंपैरेटिवली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। मतलब वी वर डूइंग अ लॉट बेटर। हम तो लिटरली छातियां पीट रहे थे। मैं यहाँ पे बैठ के मैं 10 लोगों को बता, मैं कहा एक तो हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, दूसरे हम इतने मतलब इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर, वी गॉट एक्सपोज्ड पॉइंट ब्लैंक। ठीक है, पहली चीज तो वो। दूसरा, अब जब तुम्हारा हो रहा है, थोड़ा सा बेटर हो रहा है, गुड, द नंबर्स आर वेरी प्रॉमिसिंग, एनकरेजिंग। ओ भाई थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा आराम से कर लो, खोल लेना। और मान लिया इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, 6 महीने और कर लेगी यार, और नहीं होता खत्म कुछ देश में से। पीपल आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल देमसेल्व्स। because absolutely, because our प्राइम मिनिस्टर तो हमारे ने बोल ही दिया था पहले दिन, आत्मनिर्भर बनो। तो हमें क्लियर ही है कि आत्मनिर्भर ही है हम। हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, मेरे फ्रेंड्स को रेमडेसिविर नहीं मिली। मेरा फ्रेंड है एक सिंगापुर में रहता है, his mom struggled like anything, and trust me, there were sleepless nights that I had for my friend's mother, and he had for his own mother as well. He's bloody sitting 5,000 miles away from his mother, thinking 24 hours कि ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं है, सिलेंडर नहीं है। Go through this, you and MPs खुद, half of the MPs have gone through this nonsense, right? वो बोल रहा है ना उसके अंदर, वो प्रोफेसर जा, वो जो MP है, वो कह रहे हैं कि जी आप समझो, अगर किसी ने मेरे को फोन करा है तो मैं भी 2 या 3 लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। कितना फोन गिरता होगा? 100 में से। और सोचो MP नहीं अरेंज करवा पा रहा है, तो नॉर्मल आदमी की तो क्या ही औकात है? नॉर्मल आदमी, मी, तरुण, एवरीबॉडी, ओके, हम लोगों की तो औकात ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है MP को, किसी को, राइट? हाउ रीच दैट गाय, एंड द गाय हु इज सो पावरफुल इन द सिस्टम, ही इज टेलिंग मी दैट नहीं हो रहा। A friend of mine, I'll not like to take his name, he's a colleague as well, right? His dad is one of the biggest big shot builders for DDA, okay? Struggled like anything, and thankfully they came out pretty good. अगर इनके चक्कर में MP, MLA, डॉक्टरों के चक्कर में पड़ रहते कि ये ऑक्सीजन अरेंज करेंगे, नहीं होगा, एब्सोल्युटली नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि एक तो ये कि चलो ठीक है यार, गलती हो जाती है, सिस्टम का फेलियर है, कुछ है, हम जिस लेवल के हैं देश, यू नो, जिस मैसिव स्केल पे हम हैं और जो पॉपुलेशन है, एंड वी आर नॉट लाइक चाइना, ठीक है,
तो चीजें हैं, लेती हैं, टाइम लगता है, ठीक है, बट भाई ऐसे आके बोल देना इतने बड़े लेवल पे। अब वो कह रहा है कि आज मैंने अभी न्यूज पढ़ी, मोदी इज कॉलिंग अप बीजेपी मीट एंड सेइंग कि तुम सारे के सारे कांग्रेसियों को एक्सपोज करो क्योंकि मॉनसून सेशन नहीं होने दे रहे। यार ये बंदा ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ, पता है प्रॉब्लम क्या है, पता है प्रॉब्लम क्या है, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, डिसिप्लिनेरियन है, अच्छा वॉट एवर, जो भी ठीक है, अच्छे अच्छे का जैसे भी कर लो, बट भाई इसके अंदर ऐसी ईगो है ना यार, ऐसी कोई खोखली सी ईगो है ना इसके अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है इसका, क्या है, मतलब इसको ना हर चीज में ये लगता है कि मैंने कह दिया तो बस यही होना चाहिए, या इसी तरीके से चल। अरे भाई डेमोक्रेसी है, दैट इज वेयर दिस ब्यूटीफुल बैलेंस कम्स इन, वेयर यू आर नॉट लाइक पाकिस्तान और ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड और ये पीछे से आर्मी कंट्रोल्ड गवर्नमेंट्स और वो सब नहीं है तुम्हारी, ठीक है, तो बिहेव लाइक वन, यू आर अ लीडर ऑफ द पीपल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उन्हीं के लीडर बन के रहो ना, ये डिक्टेटरशिप तो मत चलाओ, लीडर बन के मतलब मेजोरिटी में आके मतलब लोगों की देखी जाएगी जी, अगले इलेक्शन में देख लेंगे तुम्हें, 115 रुपए लीटर पेट्रोल का रखा है तुमने, अभी तुम उस बात पे नहीं इनकी धज्जियां उड़ा रहे, मोर बना रखा है पूरे देश का भाई साहब। और ये तब है जब हाफ ऑफ द पीपल, अर्बन पीपल, हाफ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज सिटिंग एट होम, वी डोंट, अभी सप्लाई एंड डिमांड का भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, इकोनॉमिक्स सब बेवकूफों ने पड़ी हुई है, डिमांड ही नहीं है इतनी पेट्रोल इस समय एट प्रेजेंट, राइट, स्टिल वी आर। मैं जाता हूँ घर से 10 किलोमीटर, ऐसा लगता है जाने आने में 200-300 रुपए लग जाएंगे यार, लग गए, बिल्कुल, क्रेजी, कोई भी सोचेगा ये बात, क्रेजी राइट नाउ। 12-13 की गाड़ी की एवरेज है, 2 बार ही आए गए चक्कर लगाए तो लग गए ना 200-250 तुम्हारे तो। Correct. But anyways, guys, I think enough of ranting. I just want to, and there, you must have noticed there are no props that we're using today, no goggles, nothing at all. अरे we are very serious यार, bencho, then we are disappointed with this fucked up ये ऐसे गंदे लूज कमेंट आते हैं जो सरकार के, right, burns my blood। हमारा जीवन अपने हमारे हाथ में। एक बहुत अच्छी एड आया करती थी दूरदर्शन पे ना कुछ साल पहले, आई थिंक तरुण वुड रिमेंबर, मर्जी है आपकी आखिर सिर है आपका, राइट? Note with a little funny note, I would like to end it up, right? Be safe, stay at home. The Delta variant is here to kill you. It is going to murder you. The most elite of the variants which is available. Please stay at home. ये बेवकूफी बातें कि चाट पकौड़ियां खाया हूं मैं जाकर गुड़गांव में, इतने दिन हो गए मैंने छोले भटूरे नहीं खाए हैं, ये अब तो सब खुल गया है। in my language, ये कंजरपना बंद करो, खा लेंगे, सारी जिंदगी पड़ी है, मूवीज भी देख लेंगे, it will open up, everything will be back to normal. Stay put for some days यार, because you guys know it, हमने सबने second wave witness की है, everybody was affected, right? Human psychology is such a thing, हम भूल जाते हैं चीजें, right? सही बात है ना, when I think about that zone, I'm sorry but I don't have words, I don't want to live those freaking 40-45 days again. 100. I can't. 100% agree with you. You guys do not. So stay at home, be safe, right? And in the end, like I said again, मर्जी है आपकी, आखिर सिर है आपका। बिल्कुल ठीक बात है। Perfect. To this, on this note, we would like to end this video, guys. Thank you. सुनो, ध्यान दो, ठीक है? गधे मत बनो, ठीक है? और अक्ल लगाओ। चलो, bye. Take care. Bye. See you all.